آئے میرے ساتھ نکالے زبور کی کتاب اس کا 66 زبور 66 یعنی زبور 66 اس کی 18 آیت میں سے ہم انجیل مقدس کا مطالعہ کریں گے. بڑے غور سے آپ نے یہ سرمن کو سننا ہے. 20 منٹ کا سرمن ہوگا, اس سے زیادہ نہیں ہوگا, لیکن میں ایمان رکھتا ہوں کہ اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کی زندگی بلیس ہوگی. زبور 66 اس کی 18 آیت میں سے اگر کسی بہن نے نکالا تو آپ مطالعہ کر سکتے ہیں, اسے پڑھ سکتے ہیں, ہمیں پڑھنے میں لیڈ کر سکتے ہیں. خداوند کے زندہ پاک کلام میں لکھا ہے, اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا. آمین. ایک دوسرے کو بولو اگر تیرے دل میں بدی ہے, اگر تیرے دل میں بدی ہے, خدا تیری دعا نہیں سنتا. خدا تیری دعا نہیں سنتا. آپ سب اپنی جگہوں پر بیٹھ سکتے ہیں. ابھی جو ہم نے انجیل مقدس میں سے جو مقدس آیت پڑھی ہے, خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ اگر میرے دل میں بدی ہوتی تو خدا میری نہ سنتا. اگر میرے دل میں بدی ہوتی تو خدا میری نہ سنتا. سارے میرے پیچھے بولا اگر میرے دل میں اگر میرے دل میں بدی ہوتی بدی ہوتی تو خدا میری تو خدا میری نہ سنتا. نہ سنتا. آمین. آمین. تو ابھی میں آپ کے دل میں بدی ہے تو آپ کے چرچز جانے میں, آپ کی پرارتھنائیں کرنے میں خدا کا آپ پر کوئی دھیان نہیں ہے. خدا آپ پر فوکس نہیں کرتا. اگر آپ کے دل میں بدی ہے, اگر آپ اپنے چرچ کے لیے یا خدا کے کام کے لیے اگر اپنے دل میں بدی رکھ کے کریں گے تو آپ کبھی گرو نہیں ہوں گے, آپ کبھی فائدہ مند نہیں ہوں گے, آپ کبھی آگے نہیں بڑھ سکیں. میں نے جتنی دیر بھی یہاں منسٹری کی ہے, میں نے جتنی دیر بھی میں نے بدی کے ساتھ نہیں کی. میں نے اپنے دل میں بدی نہیں رکھی کسی فیملی کے لیے, کسی اپنے روحانی بیٹے بیٹی کے لیے, کسی کے لیے نہیں. میں نے سب سے ایکول پیار کیا. میں نے سب کو آگے بڑھانے کے لیے پریئر کیا کہ میرے بیٹے بیٹیاں ترقی کرے, میرا چرچ ترقی کرے, فائنینشلی طور پر میرا چرچ ترقی کرے, میرا چرچ روحانی طور پر ترقی کرے. آمین. تو خدا کا بندہ داؤد کہہ رہا ہے کہ اگر میرے دل میں بدی ہوتی تو خدا میری نہ سنتا. اگر آج آپ اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کے دل میں بدی نہیں ہونی چاہیے. اپنے چرچ کے لیے, اپنے خادم کے خلاف, اپنی کوائر کے خلاف, اپنے ایریا کے خلاف, کسی کے خلاف آپ کے دل میں بدی نہیں ہونی چاہیے. جب آپ مکمل طور پر اپنے دل سے بدی کو نکال دیں گے تو جب آپ پریئر کریں گے آپ کی پریئر سنی جائے گی, آپ کی پریئر قبول ہوگی, آپ کی دعاؤں کا جواب آئے گا. جب نیچے ہم آیت میں دیکھتے ہیں لیکن خداوند نے یقیناً سن لیا. یقیناً کا مطلب ہوتا ہے کہ پوری طور پر مجھے یقین ہے کہ میں جو دعا کر رہا ہوں خدا میری سن رہا ہے, اس نے میری دعا کی آواز پر کان لگایا ہے. خدا مبارک ہے. ہاللیلویا. اگر آپ کے دل میں بدی ہے, آپ فاسٹنگ کر رہے ہیں, آپ روزے رکھ رہے ہیں, آپ دعائیں کر رہے ہیں, تو مجھے بتائیں آپ کی دعائیں کیسے سنی جائیں گی؟ کیونکہ آپ کے دل میں تو بدی ہے, آپ کے دل میں تو شرارت ہے, آپ کے دل میں تو بری سوچیں ہیں. تو انجیل مقدس میں جب ہم پرانے عہد نامہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ ساؤل بادشاہ کا ذکر ملتا ہے. خدا نے اسے ممسوح کیا. خدا نے بنیامین کے قبیلے سے جو سب سے چھوٹا تھا, خدا نے وہاں اسے چنا. وہاں سے خدا وہ کیا ڈھونڈنے گیا تھا؟ گدھے ڈھونڈنے گیا تھا. اور سیموئیل نے اسے آئل ڈال کر مسح کیا. اس نے کہا آنے والا بادشاہ تو ہوگا. لیکن اس کے دل میں کیا تھی؟ بدی تھی خدا کے لیے. وہ خدا کو زیادہ عزت نہیں دیتا تھا, وہ انسانوں کو زیادہ عزت دیتا تھا. اسے ہر وقت یہ فکر پڑی رہتی تھی میری عزت انسانوں کے سامنے بنے. اور خدا نے کیا اسے قبول کیا؟ کیونکہ خدا جانتا تھا کہ ساؤل بادشاہ کے دل میں کیا ہے؟ بدی ہے. وہ میرے حکموں کو نہیں مانتا. وہ بسا اوقات ہم کیا کرتے ہیں, ہم خدا کے حکموں کو ترک کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کریں, ہم اپنی مرضی سے آگے بڑھیں. ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, جس طرح آسمان پر پوری تیری مرضی پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. تو خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا زمین والوں کی ہمیشہ نہیں مانتا. خدا ہمیشہ اپنی مرضی کرتا ہے. خدا کو پتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے, کب چاہیے, کس وقت چاہیے. بائبل مقدس میں لکھا کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے کیا پیدا کرتی ہیں؟ بھلائی پیدا کرتی ہیں. آج ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہماری بھلائی کے لیے. آج ہماری زندگی اگر دکھ ہے, مصیبتیں ہیں, تو وہ ہماری بھلائی کے لیے ہیں, ہمیں آگے بڑھنے کے لیے. اگر ہم آج کسی جگہ پر سروائیو کر رہے ہیں, کہیں جگہ پر مصیبت زدہ ہے, تو پھر گڈ نیوز ہے آپ کے لیے. آپ کی مصیبتیں
जल्द खुदा खत्म करेगा और उन मुसीबतों में खुदा आपके लिए भलाई के दरवाजे खोलेगा। हालेलुया। इसलिए कभी भी परेशान ना हो, कभी भी दुख और मुसीबत आपकी जिंदगी में आए तो आप कहें कि खुदावन इस दुख और मुसीबत के बाद, इस बीमारी के बाद खुदा मेरे लिए भलाई के दरवाजे खोलने वाले हैं, खुदा मेरे लिए अच्छाई के दरवाजे खोलने वाले हैं। खुदा आज हमारा घर कच्चा है लेकिन एक वक्त आएगा खुदा मेरे पूरे घर पर लेंटर होगा। हालेलुया। आज खुदावन हम अगर गरीब हैं तो हम तेरी बादशाही के लिए अमीर होंगे। खुदा आपको दुनियावी दौलत भी देगा, खुदा आपको रूहानी दौलत भी देगा, लेकिन सबसे जो जरूरी चीज है वो आपकी रूहानी दौलत है। आपके पास ईमान की दौलत होनी चाहिए। आमीन। आप जानते हैं कि कुछ लोग पास्टर के पास रहकर भी उनके दिल में बदी होती है। आप जानते हैं कि यीशु मसीह के कितने डिसाइपल थे? 11 के दिल में बदी, लेकिन एक के दिल में क्या थी? उसके पास रुपए पैसा था, खुदा ने उसे खजांची बनाया था, खुदा ने उसे अपना बैंक, समझिए कि उसे बैंक एटीएम कार्ड हो रहा ਹੁੰਦਾ एटीएम कार्ड खुदा नु कहता सी आप ऐसा करें यहूदा रोटी ले, आप ऐसा करें गरीबों की मदद करें, लेकिन उसके दिल में क्या थी? और वो क्या करता था? खुदा की थैली में से पैसे निकालता था और खुदा की नजर में वो चोर कहलाया। और सातवां हुक्म यह कि चोरी ना करना। और एक दिन उसकी चोरी ने क्या कर दिया? शैतान ने जब देखा कि ये बंदा इस जगह पर वीक है तो शैतान ने क्या किया? उसे यूज किया खुदा को पकड़वाने के लिए। ज़बूर नवीस में लिखा कि उसका घर उजड़ जाएगा, उसका ओहदा लेकर किसी दूसरे को दे दिया जाएगा, उसकी सीट उठाकर, आप जानते हैं मतिया के नाम जब कुरा डाला गया तो मतिया को उसकी सीट देगी। यानी कि खुदा ने अपने शागिर्द पूरे रखे लेकिन उस शागिर्द का हिस्सा दूसरे को दे दिया और वो सबब बना यीशु मसीह के क्रूस तक। खुदा ने क्रूस पर तो जाना था लेकिन वो वसीला बन गया खुदा को सलीब पर ले जाने का। इसलिए खुदा का बंदा कहता है कि अगर मेरे दिल में बदी होती तो खुदा मेरी ना सुनता। दुआ करने आ उस तो बाद साडे दिल च खुदियां नहीं निकलदियां, उस तो बाद साडे दिल च बदियां नहीं जादियां। ओदे लिए बदी, ओदे लिए बदी, ओनू गल्ला, ओनू गल्ला, ओनू गल्ला, ये क्या है? बदी है। जब आप अपने दिल से पूरी बदी को निकाल देंगे, हर एक बंदे के लिए सोचेंगे अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो आप अपने दिल से बदी निकाल दें। जब आप इस बात पर यकीन करते हैं कि साडियां जंगा कौन लड़ेगा तो फिर खुदा नहीं लड़न दे, फिर अपना मुंह बंद कर लो। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਚਲਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਹੀ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਤੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਲਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ, ਐ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛੇਗਾ? ਅਗਰ ਆਪਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਅਲਫਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, अगर तुसी बदला ले लिया तो फिर खुदा की बदला लेगा। इसलिए तो दाऊद कहता है कि अगर मेरे दिल में बदी होती तो खुदा मेरी अगर दाऊद के दिल में बदी होता तो दाऊद कभी भी बादशाह ना बनता। आप जानते हैं कि 3 से 4 दफा उसे मौका मिला कि साउल बादशाह को कत्ल करे, हालांकि वो जानता था कि साउल बादशाह को मारने के बाद ही मैं बादशाह बनूंगा, लेकिन उसके दिल में क्या थी? बदी नहीं थी उसके दिल में। वो हमेशा डरता था साउल बादशाह को मारने के लिए कि नहीं ये खुदा का ममसू है, इसे सैमुएल नबी ने मसा किया है, ये मेरे हाथ से नहीं मरेगा, खुदा ही इन्हें मारे तो मारे, मेरे तो गुनाह नहीं होना चाहिए। उसे बहुत दफा मौका मिला उसे कत्ल करने का, मारने के लिए, लेकिन उसने अपनी तलवार नहीं खींची साउल के लिए। उसने साउल के साथ बदी नहीं की, बल्कि साउल उसके साथ बदी करता रहा, लेकिन वो हमेशा खुदा से कहता रहा कि मैं खुदावंद से फरियाद करूंगा, खुदा मेरी सुनेगा, खुदा मेरी कुमक आसमान से आएगी, इंसान मेरा क्या कर सकता है। वो हमेशा ये दुआ करता रहा, लेकिन उसने अपने दिल में किसी के लिए बदी नहीं की। हालेलुया। अगर आज आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं कबूल हो, अगर आज आप चाहते हैं कि आप फाइनेंशियल तौर पर बढ़े, अगर आप चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअल तौर पर आगे बढ़े, अगर आप चाहते हैं कि आप जिन चीजों में आज सरवाइव कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम इन चीजों से निकलना चाहते हैं, तो आपने दिल से बदी को निकाल दें, अपने दिल को धो लें, यीशु के लहू से धो लें। और जब यीशु का लहू आपके दिल में आ जाएगा तो आपकी तमाम बदी, आपकी तमाम कमजोरियां, आपके तमाम दुख, आपके तमाम मुसीबतें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है कि अगर मेरे दिल में बदी होती तो खुदा मेरी ना सुनता। मैंने जब 2019 में यहाँ मिनिस्ट्री शुरू की तो बहुत से लोग मुखालफत आज भी करते थे, लेकिन मैंने कभी किसी की मुखालफत नहीं की, मैंने कभी किसी के अगेंस्ट नहीं बोला। मैं मुझे मेरे शागिर्द बताते रहे पास्टर जी फलाना जी किधर, तो मैं ऐसे यार कोई गल नहीं कहता, कोई गल उन्हें मेरिया लड़ाइयां मेरा
ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਲੜੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ खुदा लड़ेगा। लेकिन आपने किसी के लिए बदी नहीं रखनी, आपने किसी के लिए बुरे ख्यालात नहीं बोलने, आपने किसी के लिए बुरे वर्ड नहीं बोलने, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा क्या मुमकिन है कि एक ही चश्मे से खारा पानी निकले और एक ही चश्मे से मीठा। एक ही मुंह से हम बदी की दुआ करें और एक ही मुंह से हम दुआ करें। मेरे अजीजों, ऐसा नहीं होना चाहिए। खुदा का बंदा कहता हमें बिल्कुल एक ही जुबान रहनी चाहिए। हमें इसी जुबान से लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए, क्योंकि हम बरकत के लिए बुलाए गए हैं, लानत के लिए हम नहीं बुलाए गए, हम बरकत के लिए बुलाए गए हैं। आपका सब्र, आपका पैशंस आपको बहुत ज्यादा ब्लेस करेगा। मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सब्र किया, बर्दाश्त की, पेशेंस के साथ। मैंने कहा कोई बात नहीं, खुदा देखेगा, कोई बात नहीं, मेरा खुदा मेरे साथ। और जिसके साथ खुदा खड़ा हो जाए उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं गिरा सकती। सानू किसी टाइम होता ना, साने तो रिश्तेदार ने सानू किसी पासे नहीं लगन दिता, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਖਾ ਗਈ ਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਚੜਨ ਲੱਗਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਜੀ, ਫੇਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। हालेलुया। बस ये करें कि खुदा की निगाह हमेशा आप पर रहे, खुदा की नजर हमेशा आप पर रहे। जब खुदा की नजर आप पर रहेगी तो आप बुलंदियों तक जाएंगे, आप सरफराज होंगे। लेकिन जब खुदा की नजर आपसे हट जाएगी, फिर आप जितना मर्जी जोर लगाते रहें, जितनी मर्जी एफर्ट करते रहें, आप अपनी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होंगे। इसीलिए हमेशा दुआ करते रहें, खुदा बदी को मेरे दिल से निकाल। अगर खुदा कहीं ना कहीं मेरे माइंड में, मेरे दिल के किसी कोने में किसी के लिए कोई बदी है, तो खुदा इस बदी को मेरे दिल से निकाल। आप जानते हैं कि आपके दिल में किसके लिए बदी है, उस बदी को दूर कर दें, फिर दुआ करें। फिर एक वक्त था, हन्ना और फनन्ना दोनों क्या थी, सौकन थी ना। हन्ना हमेशा उसके लिए बदी रखती थी, ऐ मैनू इंज कहंदी है, मैनू मेहने मारती है, ये मुझे ये कहती है, ये मुझे वो कहती है। वो हमेशा अपने शोहर से लड़ती थी। एक दिन उसने बदी को अपने दिल से दूर कर लिया। एक दिन उसने अपनी सौकन के लिए बदी को निकाल दिया और घुटने टेक कर दुआ करना शुरू कर दी। और जैसे जैसे आंसू उसके रुखसारों से होकर जमीन पर गिर रहे थे, वैसे वैसे बदी उसके दिल से जा रही थी। आप जैसे जैसे दुआएं करते हैं, आप जैसे जैसे आंसू बहाते हैं, जैसे जैसे आपके आंसू आपके रुखसारों से होकर जमीन पर गिरते हैं, वैसे वैसे बदी आपके दिल से निकलती है। इसलिए हमेशा जब भी दुआ करें, कहे खुदा मैं माफ करता हूँ, खुदा मैं माफ करती हूँ, खुदा मैं बदी को अपने दिल से निकालती हूँ। तो मैं ईमान रखता हूँ, जब आप हन्ना की तरह रोकर अपने रुखसारों को, अपने होंठों को खुदा के लिए इस्तेमाल करेंगे, बदी को अपने दिल से निकाल देंगे, तो मैं ईमान रखता हूँ वो एक बरकत चाह रही थी। खुदा ने कहा डोंट वरी, आज तूने अपनी बदी को अपने दिल से निकाल दिया है, तू एक बरकत मांग रही है, मैं तुझे 8-10। हालेलुया। और वो इतनी ब्लेस हुई कि वो झूमती नाचती हुई साल ब साल खुदा की हुजूरी में आती। हालेलुया। इसलिए अगर जिंदगी में कहीं कामयाब होना चाहते हैं तो कभी किसी के लिए बदी न रखें, कभी किसी के लिए इस मकसद के लिए दोस्ती मत लगाएं कि मुझे इससे कुछ फायदा होने वाला है। आप उसके लिए फायदा बने कि मुझसे कुछ फायदा। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मेरे तो कोई फायदा चुके। अगर मैं किसी लायक हूँ तो मुझसे कुछ फायदा उठा ले, चाहे वो छोटा फायदा हो चाहे बड़ा हो। मेरी कोशिश यही रहता है कि मैं किसी के लिए यूज हूँ, इंसानियत के लिए, इंसानों के लिए मैं खुदा इस्तेमाल होना चाहता हूँ। क्योंकि जब आप बनी नो इंसान के लिए इस्तेमाल होते हैं तो इसका मतलब है आप खुदा को कर्ज देते हैं, आप खुदा को पैसे देते हैं, तो फिर खुदा तानू मल्टीप्लाई करके वापस। हालेलुया। बंदे नू 10,000 रुपया धारा दे दो ना, अपने पैसे मंगन जाओ तो कहने जान ही नहीं छाड़ते साड़ी, दे दवांगे की होया ना ऐसे। हालांकि आप पैसे भी अपने ही मांग रहे हैं, आपने तो उधार दिए हैं, आपका फर्ज बनता है कि आप टाइम पर उन्हें वापस करें। एक असी देने भी है, एक असी आने भी आड़ने हुंदा ना किसी मैं दे दांगे 100 दी केड़ी गल, मर चले आ मिनट बाद स्नेहा भेज देंदे आ, देना 500 दे दांगे, तो ऐसे भी होता है ना। इसका मतलब हमने बदी बोई। आप रिक्वेस्ट कर सकते भाई हम आपको जरूर देंगे, हमने आपके देने हैं हमने, लेकिन हम आपके लिए बदी नहीं रख सकते, हम आपके लिए बुरे अल्फाज नहीं बोल सकते। जब आप किसी के लिए बदी रखेंगे तो फिर आपको कभी बरकत नहीं मिल सकती। इसलिए जब आप किसी को बरकत देंगे तो आपको भी बरकत मिलेगी, क्योंकि एक नजर है जो आसमान पर हमेशा आप पर लगी रहती है और वो खुदा की नजर है। आप अपने शौहर को चीट कर सकते हैं,
आप अपनी बहन को चीट कर सकते हैं, अपने पास्टर को चीट कर सकते हैं, रिश्तेदारों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन खुदा को कभी आप धोखा, इसलिए तो वो लिखा है कि खुदा दिलों और गुर्दनों की जांचने वाला खुदा है। आपके दिल में क्या है खुदा जानता है। इसलिए तो अंजील मुकद्दस में यीशु मसीह ने अपने मुंह से बड़े अच्छे अल्फाज सादर फरमाए कि जो इंसान के दिल में होता है वो ही बाहर आता है। अच्छा इंसान अपने दिल से अच्छी चीजें निकालता है और बुरा इंसान अपने अंदर से निम बोवो ते निम उगेगी। अगले साल सेब तो नहीं ना लग जाएंगे, ममोलियां खाओगे ना है, तो जब सेब का दरख्त पौधा लाओगे तो सेब पैदा होंगे। यू आर ए ट्री, आप एक दरख्त है, आप मट्टी से बने हैं और मट्टी से हमेशा जब मट्टी में कुछ बोया जाता है तो मट्टी से क्या होता है, जड़ निकलती है और एक दरख्त बनता है। असी भी एक पौधे हैं, मट्टी है, हम जो बोएंगे जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे हम एक दरख्त है, फिर वो ही हम कई वेख्या बड़े खोड़े जो होंगे सड़ियल जो होंगे कहते ना उन्हें बुला लो, उन्होंने हर टाइम मुंह ते तरेली रहेगी, उन्हें बुला लो, बड़े सड़ियल जो होंगे वो एक इंज दी मट्टी होंगे ना किते तरगोने बोल लेंगे हैं। कई बंदे बड़े हम्बल होते हैं, हार्ड होते हैं, वो बड़े प्यार करते हैं, वो बड़ा लव शो करते हैं क्योंकि वो एक मट्टी है। उन्होंने कहीं ना कहीं केड़ा फल मिठा होंदा, आम मिठा होता है मतलब साह ही नहीं लेंदा, दौरान छुपेगा बुरे हाल, हाथ भी लिपट जाएंगे क्योंकि वो मीठा है, वो टेस्ट में अच्छा है। इस तरह इंसान की जिंदगी भी ऐसी है। आप देखा दरख्त अपने फलों से पहचाना है, इंसान भी अपनी गुफ्तगू से, इंसान भी अपने लाभ से, इंसान भी अपने बैठने उठने से, इंसान अपने अखलाकियात से, इंसान अपनी जुबान से पहचाना चाहता है कि हम क्या हैं, क्योंकि दरख्त अपने बाइबल में लिखा कि बच्चा अपनी हरकत से पहचाना चाहता है। बच्चा बड़ा इंज होवे ना तो कहते यार बड़ा शरारती शैतान तो जान छड़ा। असि एक घर चले गए, मेरे मामू थे, मैं और मेरी बेगम, उन्होंने अपने बच्चे ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਪਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਮੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ 5-10 ਮਿੰਟਾਂ ਜਿਹਨੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੋ। ਐਸਾ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਭੱਜ ਕੇ ਮੇਨ ਸੜਕ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਕਦੀ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ ਦੋ। तो बच्चा अपनी हरकत से दरख्त भी अपने फलों से पहचाना चाहता है। पता था ना अंब लगे होते सी की कह देने यार की लगे सेब लगे होते, दरख्त किससे पहचाना गया, अपने फलों से पहचाना गया। हम भी अपने फलों से पहचाने जाते हैं, अपने उठने बैठने से। हम कैसे मसीही हैं, हम कैसे क्रिश्चियन हैं, हम भी अपने फलों से पहचाने जाते हैं। बदी होती तो खुदा मेरी नीचे वो क्या कहता, लेकिन खुदा ने यकीनन सुन लिया। वो यकीन करें, एतमाद करें, जरा अपने दिल चो बदी ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਲੋ ਫਾਦਰ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਕਈ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਰਨ ਜਿਉ ਨਹੀਂ ਖਤਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਲੱਥ ਗਏ। ਭਾਈ ਭਰਾਵਾਂ ਚ ਇੰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ, दूर ना जाओ, भाई से बड़ा रिश्ता तो कोई ना होता ना। इसलिए डियर चर्च, खुदा का बंदा हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमने अपने दिलों में बदी नहीं रखनी, हमने माफ करना है तो दिल के साथ माफ करना है। जब मेरा और आपका यीशु सलीब पर जान दे रहा था तो उस पर तानाजनी की जा रही थी, उस पर गुस्ताखियां लगाई जा रही थी, और बहुत से लोग नीचे ये इस बात का वेट कर रहे थे और कह रहे थे कि तूने औरों को बचाया, खुद को भी अगर तू खुदा को 39 कोड़े मारे गए, मेरे यीशु ने कोई जवाब नहीं दिया। किसी के खिलाफ बदी नहीं लगनी, हमने किसी के खिलाफ बगावत नहीं करनी, हमने किसी के खिलाफ बुरे वर्ड नहीं बोलने। तो डियर चर्च क्या कहा यीशु मसीह ने, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते। मेरे यीशु की तालीम पर जब गौर करें तो आपको दुनिया की तमाम लोग भूल जाएंगे, दुनिया के तमाम देवता भूल जाएंगे। यीशु की तालीम शुरू होती है तो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो ऐसे लिखा ना, उन्होंने क्या मारे तो दूजा भी मारी। ये तालीम थी मेरे और आपके यीशु की, उसकी ये तालीम थी कि बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते। ये मेरे यीशु ने कहीं एहतजाज नहीं किया, वो अपने हक के लिए बोला। फकीरों और फरीसियों से आगे वो गुफ्तगू करता, बहस करता, लेकिन मेरे यीशु ने कभी किसी को गाली के बदले गाली, क्योंकि पतरस क्या कहता है, इसने गाली के बदले कभी किसी को गाली, कभी मेरे यीशु ने मुड़कर किसी ने ये नहीं किया कि मैंने आपने मुझे गाली दी और मैं आपको गाली। शर्तिया 100% आपकी दुआएं सुनी जाए। क्यों हमारी दुआएं नहीं सुनी जाती? क्योंकि हमारे दिल में बदी होती है। क्यों हमारी दुआएं नहीं सुनी जाती? क्योंकि हमारे दिल में किसी के लिए बगावत होती है। क्यों हमारी दुआएं नहीं सुनी जाती? क्योंकि हमारे दिल में किसी के लिए बदी के बीज बोए जाते हैं।
हम किसी के लिए बुरे वर्ड बोलते हैं। जब आप अपनी जिंदगी में बदी को दूर कर देंगी, अपनी आंखों को पाक कर लेंगे, अपने चाल चलन को पाक कर लेंगे, तो मैं ईमान रखता हूँ जिस तरह खुदा ने हन्ना की दुआ को सुना, जिस तरह खुदा ने पतरस की, पलूस की दुआ को सुना, बाप इब्राहिम की दुआ, बुजुर्ग अलीशा की दुआ को सुना, मैं ईमान रखता हूँ खुदा आज जो आप दुआएं कर रहे हैं, एक वक्त आएगा कि खुदा आपकी दुआओं का जवाब देगा, रिजल्ट आएगा और खुदा आपकी जिंदगी में से तमाम अंधेरों को दूर करके रखेगा। अगर मेरे दिल में बदी होती तो खुदावंद मेरी खुदा मुबारक है कि उसने मेरी दुआओं को सुन लिया। आज भी मेरे दिल आज मैं ये नहीं कि आपको अपनी सफाइयां पेश कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप मसीही जिंदगी में बढ़ रहे होते हैं तो आपको पता लग रहा होता है यू आर क्लीननेस, आप क्लीननेस की तरफ जा रहे हैं, आप पकीज़गी की तरफ जा रहे हैं, आपको खुद पता लग रहा है कि मेरी छांटी हो रही है। कहता है मसीह मैं जेड़ी टाली दी छांटी नहीं ना हुंदी और हुंदी वो कदी भी फल नहीं लिया। हालेलुया। जब जदों वो कतीरा चल रहा है ना पौधे दे, पौधा जानदार है ना कि बेजान है, जानदार है ना, उसे दर्द तो जरूर होती होगी लेकिन वो चुप रहता है, उसकी शेप बन रही होती है। जब हमारे दिल में से खुदा कतीरा इस्तेमाल कर रहा होंदा है, बड़ियां दी उत्ते चांगर भी निकल जाती, कई सरवाइव भी नहीं कर पाते, कई भाग जाते हैं। जब आपकी खुदा छांटी कर रहा हो तो फिर आप एक अच्छे डाली बनते हो। और फिर लिखा है जो अच्छा फल लाती है मेरा यीशु से और छांटता है, और ज्यादा बरकतों से छांटना इसी कहते हैं। हालेलुया। कुड़ियां वेख्या जदों ऐ साडे हो होन ते पता नहीं कहते पक्खा ला के अम्मी मेरी छाज शायद वो कनक छट गेहूं जो दाने थे छट दी सी ते गंदगी सारी उड़ जाती सी ते गेहूं नीचे गिरता ते किसकी इज्जत होती थी? जो नीचे गिरता था उसे पड़ोले च पा लेंदे सी ते बूसी नूं की कर देंदे सी। यीशु मसीह ने कहा जदों मावांगा ते मैं की कहां, गेहूं को खत्ते में जमा करूंगा और बूसी को जला दूंगा। हालेलुया। इसलिए बूसी बनना है कि गेहूं बनना है? गेहूं बनना है। तो गेहूं कब बनेंगे? जब बदी को अपने दिल से निकालेंगे, जब बुराई को अपने दिल से निकालेंगे। वो असी कढ़ दे नहीं, बुराइयां असी कढ़ दे नहीं। मैं घर एक बीबी नूं कहा, मैं भैन बपतिस्मा ले ले, कहंदी बपतिस्मे दा मतलब है तौबा करना, लेकिन मेरे सहुरे ने मेरे नाल इन्नी बुराई की मैं उन्हां नूं माफ नहीं कर सकदी। तो मैं कहा भैन इंज ही मरेगी? उन्होंने कहा इंज मैनूं मरना कबूल है। तो खुदा का बंदा दाऊद कह रहा है कि अगर मेरे दिल में बदी होती तो खुदा मेरी ना सुनता। आज कितनी गर्मी पै रही, 47 दर्जा रख साडे को बर्दाश्त दोज़ख दा दर्जा रख दिए है। कभी सोचना पै गया जब सदरक मिशक अबेदनगो को आग की भट्टी में डाला गया, भट्टी को तेज कर दिया गया। और लिखा जो फेंकने वाले थे वो भी झुलस कर मर गए। इतना ज्यादा सेक सी, पीछे बादशाह गया चलो चलो छुटो इन्हू, क्योंकि उन्हें पता सी कि अगर ना छुटा तो बादशाह फिर भी मार देगा। तो वो जो फेंकने गए थे वो भी बेचारे मर गए थे। तो लिखा है कि जब बड़ा आप सोचें लेकिन आग नू कभी नहीं साड़ती। हालेलुया। वो खुद फायर थे, वो खुद आग थे, क्योंकि आग को कभी भी नहीं जलाती। इसलिए जब आप खुद आग बन जाएंगे फिर आपको चाहे जितनी मर्जी आजमाइशें हैं, जितनी मर्जी मुसीबतें हैं, आप जितनी मर्जी आग की भट्टी में जलेंगे लेकिन खुदा आपके साथ होगा, जिस तरह जलती भट्टी में यीशु मसीह उनके साथ। हालेलुया। मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा हमें आगे बढ़ाएगा, खुदा हमें आगे लेकर जाएगा। मैं रात को बच्चे को कह रहा था, मैं जेड़ा इतों तक ले आफ्ताब आगे भी ले जाएगा। हालेलुया। वो डे बाय डे आपको बढ़ाता है, डे बाय डे वो आपको बरकतें देता है। ये नहीं होता कि आपने बपतिस्मा ले लिया अगले दिन ताड़े महल पै जाएंगे। नो, मसीह को कबूल करने के बावजूद आपकी जिंदगी में दुख आएंगे, बीमारी भी आ सकती है, खड़े रहें, बीमारी में भी खड़े रहें। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, उन्होंने सारी जिंदगी कभी तौबा नहीं की, कभी चर्च नहीं गए, कभी बाइबल नहीं पढ़ी, कभी दुआ नहीं की, लेकिन जब वो बिस्तर पर पड़ गए तो उन्होंने जादूगरां नूं फाड़ लिया कि हुण सानू जादूगर रिहाई देंगे। नो, देखा कि जो गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वालों के गम बढ़ जाते हैं, वो फिर इतनी कोशिश करते हैं कि हम सिर्फ घोड़े अर्गे होइए। नो, ऐसा नहीं होता। शिफा खुदा के हाथ में, जिंदगी तंदुरुस्ती खुदा के हाथ में है। कभी जिंदगी में दुख आए, मुसीबत आए, बीमारी आए तो इधर उधर भागने की बजाय यीशु मसीह के पास जाएं। लिखा है कि जब तुम मुसीबत में हो तो क्या करना? दुआ करना। अगर खुश हो तो क्या कर? खुशी के गीत गा, हमद के गीत गा। ते साडा उल्ट बनया, शादियां विआह ते खुशी दे टप्पे गाए रहे, डांस हो रहे आ, ते जदों साडे घर मुसीबत हो जाए फिर ते छੱਡ गल्लां दी गल्लां दो, फिर पता नहीं
پھر انہیں کیا دعا کرو پھر اسی پتہ نہیں کدھر کدھر کدی آ ہسپتال تے کدی وہ ہسپتال ہسپتالوں میں جانا میڈیسن لینا کدی یسو دے آستانہ تے آ کے ویکھو تہاڈیاں ساریاں بیماریاں دور کر دے اج تسی جڑی میڈیسن ڈاکٹر سانو نا ایک پرچی دے دے گا نا کہ میڈیسن اسی بڑے دھیان نال میڈیسن کھانے ہیں بڑا غور کرنے ہیں میری خوراک نہ مس ہو جائے لیکن دعا مس ہوندی تے ہوے چرچ مس ہوندا تے ہوے جنہیں تانوں دوائی تو بچانا اورے کول تے تسی آندے نہیں جنہیں تانوں دوائیاں تو دور رکھنا اورے کول تے تسی آندے نہیں جنہیں تانوں ہسپتالاں تو دور رکھنا اورے کول تے تسی آندے نہیں جدوں اودی کرم دی نگاہ نہیں تہاڈے تے ہوئے گی پھر کس طرح خدا تہاڈی میڈیسن چھڑائے گا میں ایمان رکھتا ہوں کہ خدا میڈیسن چھڑانے کی قوت رکھتا ہے میں میڈیسن کے خلاف نہیں ہوں میں دوائیاں چھڑانے کے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو میڈیسن کھا رہے ہیں وہ چھوڑ دیں لیکن ایک وقت آتا ہے جب خدا آپ کی میڈیسن بھی آپ کی زندگی سے نکالنے کی قوت ہاللیلویا بشرطے ایک دوسرے کو بولے کہ کسی کے خلاف بولو کسی کے خلاف بدی مت رکھ بدی مت رکھ اپنے دل میں اپنے دل میں ہاللیلویا ہاللیلویا کیونکہ بائبل یہ ہے کہ دل کی خوب حفاظت کر کیونکہ زندگی کا سر چشمہ خدا کا بندہ کہتا ہے اگر میرے دل میں بدی ہوتی تو خدا میری اپنے دلوں کو صاف کرے اور میں آج کل سب سے زیادہ اپنی باڈی پر کام کر رہا ہوں اپنی تھاٹس پر زیادہ سے زیادہ میں پازیٹیو مائنڈ بکس بھی پڑھ رہا ہوں کہ ہم نے کیسی پازیٹیو مائنڈ میں چلنا ہے کیسے ہم نے پروفیٹک ورڈ بولنے بہار بھی چڑھے ہیں پھر بھی تسی باہر نو کہنا بہار ڈونٹ وری کتنے کی دن رہیں گا کتنے کی دن تمہیں جانا ہی ہے بیماری کتنے کی دن تو رہیں گی کیونکہ میں خدا کا مقدس ہے میرے اندر روح القدس ہے ایک دن آپ کے اندر سے موو ہو جائے گا کیونکہ آپ کے دل میں بدی نہیں ہے آپ کے اندر خدا رہتا ہے اور جن جگہوں پر خدا رہتا ہے وہاں نہ بیماری رہتی ہے نہ وہاں شیطان رہتا ہے ہاللیلویا آیا تو آپ اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور چند منٹ کے لیے کہیں خدا اگر ہم کہیں نہ کہیں غلط ہیں ہمارے دل میں